Ladies and gentlemen, good evening and welcome on board our election yatra. We've moved away from Mumbai, the maximum city, to the cultural and the heritage capital of Maharashtra. We are in the iconic and the beautiful city of Pune. This is the Shaniwar Wada behind me. Lot of footfall of a lot of people here coming to you right now. Over the next 60 minutes, the idea is to meet the voters. If you're in Pune, remember, we'll come and say hi to you on the election yatra bus. We'll be speaking to you. We'll be finding out what is it that has happened in the Maharashtra politics circuit so far. Because clearly this is not a situation that was present in 2019 when the BJP and the undivided Shiv Sena literally swept the state. Versus you have seen a split in both the Shiv Sena and in the NCP. So can Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and the Congress combined really ensure that they keep the BJP and the Eknath Shinde camp and the Ajit Pawar camp literally out of Maharashtra? It's an important state to decode. We are looking at the 48 Lok Sabha seats here, and do not forget, the state of Maharashtra also has their all-important assembly elections at the end of this year. So what we do over the next few minutes is that we ask you, the voter, what are the issues that matter to you? Is this Maratha reservation? Is this the caste census? Is this about corruption? Is this about development? Is this about Viksit Bharat? Is this about infrastructure? So much to talk. Or, like the opposition says, the BJP is running scared because they do not know what will happen in Maharashtra. We'll also give you a quick insight into how do different political parties, the candidates who are contesting the Pune Lok Sabha seat actually fare. And the highlight is how we celebrated Gudi Padwa today. This is also best wishes to you, your loved ones who are all celebrating this beautiful festival in and around the state of Maharashtra. And we will also spend some time doing Maharashtran Khane Pe Charcha. So all that and much more in this episode of the Election Yatra. Stay tuned. And when you're in the state of Maharashtra, when you're in Pune, like they say, when in Rome, do as the Romans do. So we will do as the Marathas do because you're in Maharashtra. And here's wishing all of our viewers watching the broadcast, the election yatra that has moved from the national capital to the state of Maharashtra. Very happy Gudi Padwa, happy Navratra to all of you celebrating. Happy Ugadi also. And now I have Santosh ji who will ensure that we do as the Marathas do. Chaliye, shuru ho jate hain. And ये कहते हैं कि 1 मिनट का समय लगता है उनको सिर्फ ये पूरा बांधने में. And maybe he's taking a little bit more time, but that is how fast he is when he's going to be putting this on us. There is an entire Shobha Yatra, remember, that also goes on in the city. We'll get you images of that also as we'll take forward this entire journey. But right now I'm having a lot of fun, not sure how it will look. So we'll wait for the final look. The state of Maharashtra has 48 Lok Sabha seats. And remember when the Prime Minister says, Ab ki baar 400 par, every seat becomes important. The Prime Minister already has launched his big campaign blitzkrieg in the state of Maharashtra. He's hit out at Uddhav Thackeray, he's hit out at the Congress. But the crucial question is, can the BJP, remember, repeat its performance of 2019? Or this time around, because you have a split in the Sena, you have a split in the NCP, are things changing on the ground? What about the sympathy factor is what a lot of people say. And I have a panel of guests. I'm on the election yatra. We are in Pune. We are dressed for Gudi Padwa. Wishing all of you also a happy Gudi Padwa. This is the feta, the nut that my,
colleagues here have told me ये पहनना शुभ होता है and ऐसे ही गुड़ी पड़वा मनाते हैं. So happy Gudi Padwa to all of you also, and thank you for taking out time to be on our election yatra. I'll quickly introduce the guests we have on board here. We have Ali Daruwala ji, the BJP's national spokesperson, is with us. Also, Asim Sarode is an advocate, and he'll also tell us more about the kind of work he's been doing when it comes to public service. And on my right, I also have another two guests from both the Congress and the NCP here. We have Ravindra Malvankar ji, leader of the NCP, with us. Harsh Tiwari is the General Secretary of the Youth Congress in Pune. So, welcome on board. Let's begin by asking first up Daruwala ji about the BJP and its confidence. इस बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शायद भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है? चाहे आप पुणे की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, लगता नहीं है कि 2019 वाला परफॉर्मेंस आप लोग रिपीट कर पाएंगे. 370 नॉट द आर्टिकल अबॉरिगेशन. ये जो फिगर है, ये मैजिक फिगर, ये सिर्फ स्वयं भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे लेगा. और जब एनडीए को अगर हम एकत्रित करके बात करते हैं, इस 400 अब की बार 400 पार. जब मेरे पंतप्रधान अगर कुछ कहते हैं, आई एम श्योर एवरीबडी शुड टेक हिम सीरियसली एंड नॉट लाइटली. ठीक है, आपने अपनी बात तो बोल दी, लेकिन जवाब नहीं दिया. मैंने पूछा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? भाजपा को लगता है कि 2019 का परफॉर्मेंस आप लोग रिपीट कर पाएंगे या नहीं? सरोडे जी, आपको क्या लगता है इस बार भाजपा और एक साइड पे महायुति है, एक साइड पर एमवीए है, कहीं ना कहीं दिक्कतें दोनों साइड में है. कांग्रेस को भी एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड जो उसका था, उसको वो छोड़ना पड़ रहा है, बिकॉज वो भी चाहिए कि उद्धव ठाकरे शरद पवार फैक्शन को खुश रखे, उनको भी सीटें मिले. भाजपा और एकनाथ शिंदे में भी कहा जा रहा है बहुत टसल हो रही है इस समय सीट शेयरिंग को लेकर. देखिए, महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है वो मैं बहुत अच्छी तरह से अभी बता सकता हूं, क्योंकि हमने 60 सभाएं की है महाराष्ट्र में निर्भय बनों के द्वारा, और हम लोगों को डायरेक्टली मिले हैं. 5-5, 6-6 हजार लोग अगर हमारे सभा को आते हैं, क्योंकि वी आर एक्सप्रेसिंग सम एंगर. लोगों के मन में गुस्सा है, एक नाराजगी है, और वो देखते हुए हमें लगता है कि महाराष्ट्र में जो सिचुएशन भाजपा का है वो बहुत गिरने वाला है. भाजपा अलॉन्ग विथ अजीत शिंदे और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनको मिला के ये 20 तक रोके जाने वाले हैं, और ये बहुत बुरी हालत होने वाली है भाजपा की. आपको लगता है भाजपा की बहुत बुरी हालत हो जाएगी महाराष्ट्र में? बुरी हालत होने वाली है. हाँ. और दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑलवेज ऑन स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जहाँ पे प्रादेशिक पक्ष बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे उन्होंने पहले कॉन्सेंट्रेशन किया. फिर यहाँ के प्रादेशिक पक्ष महाराष्ट्र में फोड़ने की उन्हें जरूरत लगी. उन्होंने शिवसेना फूट दी और शिवसेना दूसरे को दे दी, एकनाथ शिंदे को. वैसे उन्होंने शरद पवार जो एक स्ट्रांग मैन है महाराष्ट्र ने इंडिया के पॉलिटिक्स में, उनको उन्होंने तोड़ा. लेकिन जो सहानुभूति आप बोल रही है, सिंपैथी, वो वेव अभी ज्यादा से ज्यादा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ में है. आपको ऐसा लगता है सिंपैथी होगा? रविंद्र जी, आप एक बहुत सीनियर नेता है सर, एनसीपी से जुड़े हुए हैं. अब मुझे बताइए, जब शरद पवार की बात आती है, कहा यह जाता है कि 2024 का जो चुनाव है महाराष्ट्र में, वो असली लड़ाई है देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार जी के बीच में, कि देवेंद्र फडणवीस उसी स्टेट को, उसकी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं जिसको सालों से, दशकों से शरद पवार जी चला रहे हैं. लेकिन शरद पवार की अपना इस समय क्या रोल है? बारामती की आप सीट देखिए, वहां पर भी कहा जा रहा है कि मामला बहुत टाइट हो गया है, ऐसा है क्या? देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब, ये देवेंद्र फडणवीस राजकारण के हिसाब से पवार साहब के सामने बहुत छोटे बच्चे हैं. उनके काका चाचा के साथ में उन्होंने काम किया. और पवार साहब, ये पवार महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र पवार साहब को छत्रपति शिवाजी महाराज के वैचारिक वारस बोल के पहचानते हैं. और जो शरद पवार साहब ने जो हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, वो हिसाब से पवार साहब की काम की पद्धत है, और महाराष्ट्र उनको वैसा जानता है और स्वीकारता है. और जो देवेंद्र फडणवीस है, अगर इतिहास की बात देखेंगे तो इधर आनाजी पंत बोल के वो जमाने में एक बहुत बेकार आदमी होके गया. उसने हिंदवी स्वराज्य को खत्म किया, घर घर में झगड़े लगाए. वही काम देवेंद्र फडणवीस कर रहा है.
लेकिन 2024 में आपको लगता है ये जो पूरी लेगेसी है शरद पवार की, और ये भी जो प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद की बात करते हैं कि सब कुछ बस परिवार के पास ही रह जाएगा, ये वाला आरोप लगातार आप पर भी लगता है, उद्धव ठाकरे पर भी लगता है? नहीं, अभी ऐसा है, अभी ये आरोप की बात अगर करेंगे और हाँ। पवार साहब के घर की करेंगे हाँ। तो अजीत दादा पवार तो पवार साहब के भतीजे हैं। हाँ। तो नरेंद्र फडणवीस अपना ये तुम्हारे फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने और तुम्हारे पंतप्रधान ने क्यों लिया उनको, अगर वो परिवारवाद के खिलाफ है तो मोदी उन्होंने जी नहीं कहते हैं वो परिवारवाद की परिभाषा अलग है, लेकिन जनता क्या सोचेगी वो देखा जाएगा। कांग्रेस को भी लाते हैं इन दिस कॉन्वर्सेशन। हर्ष, आप युवा नेता हैं, यू रिप्रेजेंट द यूथ कांग्रेस हियर। अब मुझे ये बताइए कि खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अपना क्लेम गिव अप कर रही है सांगली, भिवंडी और साउथ सेंट्रल सीटों पर, और आप ये चाहते हैं कि भाई दिक्कत नहीं हो किसी भी तरह, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी खुश रहे। तो कांग्रेस का जो एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड था, अब महाराष्ट्र में भी आप एक छोटे प्लेयर ही बनने वाले हैं। Not exactly. Maharashtra mein, it is a government that is going to be run by everyone. It is a people's government. Yeah. And when you get everyone together, that's when a real development happens. That's when real progress happens. So some places you do make sacrifices. You do make compromises for the betterment of the people. Not for you're not entirely looking for ki mujhe power chahiye. Power grab is a game that is being played by BJP right now. You break a party, you divide it. You are dividing the people's. But Harsh, what about the fact that multiple of your very, very senior leaders, including former chief ministers, have left the party? संजय निरुपम जी कहते हैं कि साइडलाइन हो गया था। अशोक चव्हाण ने क्या कहा ये आप जानते ही हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी से भी निकले हैं, तो somewhere the Congress also needs to do a lot of soul searching. Yeah, see, that's where this game of the centralized power comes in. Huh. Where now you can see the liquor policy case that's happening. There is no evidence against Arvind Kejriwal, yet he's arrested. The threat- Interestingly, when you say this, you're forgetting that Ajay Makhan was someone who had raised the first complaint against Arvind Kejriwal in Delhi when it comes to the liquor scam. So clearly, I think you're forgetting that. And this is what happens. You know, the youth of the country also needs to be aware about a lot of facts. And क्या होता है कि कन्वीनियंस की राजनीति है। बट सुपारी वाला जी, ये सवाल तो आपके लिए भी लागू होता है ना। आप लोग भी कन्वीनियंस के लिए लोगों को अपने साथ ले आते हैं, तब ना भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट है, ना परिवारवाद इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन कहती है भाजपा की वॉशिंग मशीन है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो फंसे तो आप भी हुए हैं महाराष्ट्र। Yeah, you're answering your question straight, ma'am, and on this prestigious channel, the citizens should know, in a larger good, we have to make small adjustments. If we have taken Honorable Ajit Pawar ji, Eknath Shinde ji with us, we should not forget that these are the candidates who have been elected, and elected with majority votes of 1.5 2 lakh differences. When the Prime Minister called the NCP the naturally corrupt party, you must be aware that he was an elected 100%, I leader. still stand by it. Yes. NCP, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, एंड उसके बावजूद आप उनको ले लेते हैं। Exactly. Ajit Pawar ji sought to develop Baramati. We cannot deprive the 3 lakh voters who are he represented by, and they need to give a representation. And Ajit Pawar is doing that befittingly. Let us appreciate that he has 48 MLAs behind him. So are and you that's a larger supporting? Are you number. supporting Ajit Pawar? You're saying look at the good side of Ajit Pawar also. 110%. Over here in politics, as I said, for a larger good, we have to make small adjustments. And in Small that adjustments, this three-engine The Prime Minister government from the is stage what calling Maharashtra him needs corrupt. today. Okay, but you know, Asim ji, forget the netas. The point is, what does the voter think? Does the voter not realize this kind of a duplicity or the hypocrisy that we see of different political parties? You name it, every political party, whether it is the BJP, the Congress, the NCP, the Shiv Sena, today has skeletons in their cupboard. See, voters have definitely understood such kind of hypocritic attitude of Narendra Modi and Amit Shah specifically. I'm mentioning the name because they are the persons who are projecting themselves as very clean and clear. And now my friend is saying that it is just small adjustment. It is not small adjustment. It is compromise on the fraud. It is compromise on the democracy. And that's why if he is of the opinion that this person is corrupt, then that person should not be in BJP. So Ajit Pawar and many other persons, 22 such persons who are corrupt, they are in BJP now. So my point is, Modi ji just delivered a lecture in Chandrapur. Yes. He said कि स्थैर्य चाहिए और स्थैर्य के लिए बीजेपी को वोट दीजिए। मैं तो बोलता हूँ अभी लोगों को कि अस्थैर्य रहा तो भी चलेगा,
डेमोक्रेसी अस्तर से जाएगी लेकिन फिर मजबूत होगी। मतलब आप कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है देश। डेमोक्रेसी खतरे में है। और दूसरा मेरा मुद्दा है जो अंडर करंट महाराष्ट्र में चल रहा है, हाँ। ये लोग हारने वाले हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, भारत में। और दूसरा, मोदी और शाह मिलके हाँ। लोग देख रहे हैं कि ये अगर बीजेपी है तो हम बीजेपी को हराएंगे। इसलिए मोदी एंड शाह वर्सेस लोकतंत्र, ऐसी ये लड़ाई है। अच्छा, मोदी एंड शाह वर्सेस लोकतंत्र, रविंद्र जी इज व्हाट ही सेज। बट एक चीज बताइए, जब महाराष्ट्र की बात आती है, हम जब मुंबई से पुणे आ रहे थे हमने अटल सेतु का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने जब उसका इनॉग्रेशन किया था, द प्राइम मिनिस्टर सेड कि हमारे टाइम पे लोग पूछते अच्छा ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा, आप कब ये सुविधा देंगे, बुलेट ट्रेन कब आएगी, वंदे भारत कब चलेगी। लेकिन आप लोगों के टाइम में तो सिर्फ करप्शन 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 की बात होती थी, स्कैम्स की बात होती थी। हाँ। ऐसा है, 75 साल पहले 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, सुई भी नहीं इधर तैयार होती थी। इसके बाद में इतना जो सब प्रगति हो गई, इसमें नरेंद्र मोदी जो चाय बेचने वाला था उनको भी पंतप्रधान बना दिया। हाँ। इतनी प्रगति जो की है वो कांग्रेस के लोकशाही और जो प्रगति की उसके वजह से हुई है। नहीं तो आप कह रहे हैं क्या चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये कहने की ऐसा मतलब तो नहीं है ना? नहीं, हाँ। हमने तो किसके भी लिए ओपन क्योंकि ये रखा। मणिशंकर अय्यर ने एक बार बोला था और हमें याद है हम तब गुजरात में थे और यही बात उठी थी कि क्या है, कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भी अगर चाय बेचेंगे नहीं होगा। तो कांग्रेस ऐसे बहुत सारे फौपा करती है। कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम्स इतनी सारी है इस समय कि आप उससे कैसे डील करेंगे। युवाओं की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस का जो अपना मैनिफेस्टो है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि पूरे इंडिया अलायंस का एक मैनिफेस्टो होना चाहिए था। आप लोग सब मिल बैठ के बात करते, एक एजेंडा बनाते, एक फेस बनाते, लेकिन आप ये नहीं कर पाए। Everyone's involvement is important. When the people are there, that's when the progress will happen. अगर हर एक के opinion consider नहीं करेंगे, so how you gonna be? It's gonna be just everything is included. अगर Congress is focusing on one part, Shiv Sena UBT is gonna be focusing on another part. All these come together, they work together, and it is like a clockwork. All gears are important, all opinions are important, and that's how they're going to progress. You cannot have one dominant party के हम सब करेंगे, हमारे इशारों पे सब चलेगा। तो कांग्रेस ने क्या अपनी गलतियों से सीखा है? So Congress learned from that high command culture, Harsh. Everyone learns from their mistakes. Everyone is going forward from Is the Congress still a high command party? You can't, it's not a high command party. It's a very divisionized party. People are. You say it's a democratic party? I'm asking you. Is the Congress a democratic party or a high command party? Is BJP a democratic Why party? did your party spokesperson quit, claiming that Rahul Gandhi ji is running a dictatorial youth election? Why are you here today? He doesn't it's have not a a reply. dictatorial this thing. The country is exactly a dictatorial regime right now. You see, the information is being suppressed. The culture is being suppressed. Any dictatorship has an obsession with suppressing knowledge, culture, and limiting it to the people. You know, in Rome, they gave out bread so that people forgot about the wars, forgot about the massacres. Here, we are being suppressed with information. The youth, you spoke about the youth. The youth is being deprived of education. Why? That is a state mark for a dictatorship. And Okay. you are talking about Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is not limiting anything from Congress. He is But do you actually believe Rahul Gandhi is your biggest liability? Do you agree? Rahul Gandhi sir, absolutely not. Rahul Gandhi सबसे बड़ी Absolutely दिक्कत not. है आप लोगों के अलायंस की। नहीं, राहुल गांधी तो राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, बनना चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे? करेंगे। ठीक है। तो ममता बनर्जी तो नहीं मानी थी, वो तो कह रही थी खड़गे जी को बना दीजिए, अरविंद केजरीवाल माने थे, नीतीश कुमार इसलिए वो राहुल गांधी को ये बनाना ऐसा बोलना नहीं है। Once हमारे आघाड़ी का कोई भी आदमी बन सकता है। अच्छा, राहुल गांधी बनेंगे ये बोलना नहीं है, कोई भी बन सकता है। सो आई लेट आवर व्यूअर्स डिसाइड बिकॉज व्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट, लाइक दे से कि जनता है सब जानती है। आई थैंक ऑल आवर गेस्ट्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन द इलेक्शन यात्रा। वी कंटिन्यू एंड वी आर फिगरिंग आउट व्हाट्स हैपनिंग नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट दिस इज अ जर्नी दैट विल कंटिन्यू टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वी विल बी इन योर सिटी वेरी सून। Ladies and gentlemen, we are in the lovely city of Pune. It's also remembered called the Queen of the Deccan. It's the Oxford of the East. The battle here is a triangular fight, this time poised between different candidates. As we are on top of the election yatra bus, let me quickly take a moment to introduce our panel of guests who are joining us on top of the bus right now. We have Basant Moreji from the Vanchit Bahujan Aghadi candidate. He was earlier with the MNS.
We also have Muralidhar Mohalji, the BJP candidate here from the Pune constituency. And unfortunately, the Congress candidate is running late. But because we here, remember, are giving equal balance when it comes to people, their perspective, political parties. I also have Sangeeta Tiwari ji, the Maharashtra State Vice President of the Mahila Morcha with us here on top of the bus. Without wasting time, सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं, बसंत मोरे जी, आप दोनों अच्छे मित्र नजर आते हैं, मित्रता अच्छी बात है पॉलिटिक्स में, लेकिन आज ही ऑपोजिशन आप लोगों को अटैक कर रही है ये कहकर INDA अलायंस वाले कि आप इन्हीं की बी टीम थे और इसीलिए इन्हीं के पास चले गए हैं। इन्हीं के पास वंचित बहुजन आघाड़ी, ये तो सेपरेट पार्टी है। हाँ, इनके पास कैसे चले गए? बट वो कह रहे हैं आप इनके पास जाएंगे, इसका मतलब यही है कि आप कांग्रेस का वोट काटेंगे और अरे, बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा है क्या सर? पुणे की जनता ठहरेंगी किसी को वोट देना है। हाँ, ये वोट के ऊपर जो पुणेकर है, इनके वोट के ऊपर ना किसी पार्टी का हक है ना किसी का। वो पूना का पब्लिक डिसाइड करेंगे किसी को वोट देना है, जो जिसने काम किया है उसको वोट करेंगे, ना कि किसी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कहते हैं आप बी टीम नहीं है। अब आप सर मुझे बताइए मुरलीधर जी, जब बीजेपी की बात होती है, महाराष्ट्र की जो 48 सीट्स है, ये कहा जाता है कि शायद बीजेपी अपना पुराना परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाएगी। अब पुणे जैसे कंस्टिट्यूएंसी में क्या आप लोगों के मुद्दे हैं, क्या वोटर आपसे चाहता है और बीजेपी ने क्या क्या डिलीवर किया है अभी तक? मुझे लगता है कि पिछली बार जो पूरे महाराष्ट्र में हमने 43 सीट्स यहाँ पे हमें मिले थे, मुझे लगता है इसे 1-2 सीट ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि उसका कारण है, उसका रीजन है कि पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने इस पुणे शहर को बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे हमारी देखो बहुत सालों से खाली चर्चा चल रही थी मेट्रो करके। पुणे के लिए मेट्रो आ गई, पुणे के लिए रिवर का बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, पुणे के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया, पुणे के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हजारों गरीबों को घर यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे उपलब्धि प्राप्त हुई है। पुणे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे उसके लिए 350 ई बसेज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। बहुत कुछ उपलब्धियां यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें प्राप्त हुई है। दूसरी बात, जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको उसका जीवन समृद्ध करने के लिए मोदी जी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ योजनाएं लाई। आज सिर्फ पुणे शहर में 2.5 लाख ऐसे लाभार्थी है जो कुछ न कुछ योजना का उसको फायदा हुआ है, या उज्ज्वला गैस रहेगा या सुकन्या योजना रहेगी या कुछ आयुष्मान भारत जैसे। तो मुझे लगता है कि 10 साल का मोदी गवर्नमेंट का काम और पिछले 5 साल यहाँ पे नगर निगम में जो हम लोगों ने 5 साल करके यहाँ पे जो कुछ काम किया, मुझे लगता है पुणे वासियों खुश है। पुणे का ये जनता जो है ये विकास को वोट करती है। ये पुणे का भविष्य कौन यहाँ पे अच्छी तरह से, यहाँ पुणे का भविष्य कौन अच्छी तरह से तय कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है, उसे वोट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में 43 से ज्यादा सीट्स और पुणे की उसमें 1 सीट बिल्कुल हम जीत जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं संगीता जी के पास जाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप लोग कहते हैं अगर भाजपा ने इतना काम किया है, विकास किया है, आप मानते हैं सर बीजेपी ने विकास किया है? 100% बीजेपी ने पूना में तो नहीं किया है। पूना में विकास नहीं किया। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये दिया, वो दिया, ट्रेन दी, मेट्रो दी, RFD दिया, इस पूना में 6 MLA 10 साल से इनका MPs है, 100 के ऊपर इनके कारपोरेटर है। इतना पूना वालों ने इनको दिया, इन्होंने पूना को क्या दिया? तो आप ही सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, कुछ नहीं मैंने तो दिया। यहाँ पे मोदी काम जी ने किया वो नहीं है। मैंने क्या बोला? इन्होंने पुणे के लोग पुणे को मोदी क्या जी ने दिया? काम किया है, आप मोदी ये जी ने मानते काम किया हैं? है, इसलिए तो मोदी जी ने वोट पुणे करेंगे के लिए ना। दिया, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने, अगर ये लोग इतने साल से पुणे में काम कर रहे हैं, हाँ। 100 के ऊपर कारपोरेटर है, आज इन्होंने मैं पुणे के लिए आपको क्या पुणे दिया? की उपलब्धि भी बता सकता हूँ। ये सेंट्रल नहीं। गवर्नमेंट की मैंने बताई खाली। नहीं, उपलब्धियां ठीक है, लेकिन जी। बहुत सारे सवाल आप पे उठ रहे हैं। जब ये सारी बातें आप करते हैं, एक अकेला मोदी सब पर भारी, तो ये बताइए तोड़ तोड़ के आपको भ्रष्ट नेताओं को क्यों महाराष्ट्र में अपने साथ लेना पड़ रहा है? नहीं, क्यों ये लेते बात हैं आप? अगर ये अभी आप 48 डेवलपमेंट पे बात करें, 40 मुझे के लगता है, ऊपर जा रहे हैं। देखिए ये सिर्फ भाजपा में नहीं हो रहा है, ये बीजेपी में नहीं हो रहा है। आज आप देखो कौन कौन से पार्टी में जा रहा है, बहुत लोग हैं। आज हमारे सब तो वसंत आचार्य भाजपा में आ रहे हैं। आज हमारे वसंत आचार्य भी मनसे में थे, हाँ। अभी वंचित में गए। हाँ। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, हर कोई किसी पार्टी ये में जा बीजेपी सकता है। ये नहीं जा रही लोकतंत्र है, है, लोग बीजेपी ये सब करवा रही ये है। लोकतंत्र है। हाँ। यहाँ पे अच्छा, ये लोकतंत्र है। स्वातंत्र है। तो कोई भी अशोक व्यक्ति चव्हाण किसी भी जब पार्टी में तक जा सकते भाजपा हैं। में नहीं थे,
तो वो भ्रष्ट थे। अजीत पवार जब तक इनके वो पास भाजपा वॉशिंग में वो जो नहीं न्याय थे- व्यवस्था इनके है पास वो वॉशिंग तय मशीन करेगी है। ना आगे जाके नहीं, न्याय वॉशिंग व्यवस्था मशीन की है। हमें हाँ। देखो हम आप मानते हैं ये वॉशिंग लोकतंत्र मशीन ये है? इनके हम पास वॉशिंग लोकतंत्र मशीन में है। रहते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे में लोकतंत्र में हाँ, मुझे भी बात करनी चाहिए। हाँ। आप उनसे बात करेंगे तो ठीक है, हाँ। मुझे भी बात करनी है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये हिंदुस्तान एक बड़ी लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है ये न्याय व्यवस्था भी यहाँ पे, तो न्याय व्यवस्था तय करेंगे आगे जाके। और नहीं, कौन नहीं। सी पार्टी में कोई नेता नहीं जाता, कहाँ हर एक पे पार्टी में न्याय आप देखिए एनसी में कोई जाता है। चलिए जनता ठाकरे डिसाइड का- करेगी, शिवसेना में जनता ये जाता है। डिसाइड करेगी। अब मैं संगीता जी को भी लाती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। संगीता जी, अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आप लोगों की ना नियत है, ना आपका कॉमन मैनिफेस्टो है, ना कोई चेहरा है। एमवीए में अपने आप ही बहुत सारी सीटों को लेकर इस समय आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे सांगली की भी सीट है। तो ऐसे में भाजपा ये कहती है कि अगर हमारे में आपकी पार्टी में ये लोग नेता आ रहे हैं तो क्या गलत है? वो कांग्रेस में अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं? देखिए, कांग्रेस छोड़ के मतलब भाजपा हाँ। का ये था कि कांग्रेस मुक्त हाँ होने वाला है, हाँ। पर ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग भाजपा में, हाँ। भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में, बलात्कारी, अत्याचारी, चोर, डकैत भाजपा में। मतलब इन्होंने अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी सब लिया है। तो आप मानती है कि ये सारे चोर भ्रष्टाचारी कांग्रेस में तो थे? सालों से इन्होंने आप ये मानती है? नहीं, तो नहीं, सालों से वो इन्होंने बताया था। इन लोगों के साथ काम किया है। Allegation was from Bhajapa. हाँ. Allegation was from Bhajapa. हाँ. And now where is the allegations? नहीं, but now they do are you- saying they are totally washed, हाँ. clean sheet. मोदी साहब ने उनकी सभा में बोला था अजित पवार जी के ऊपर, कहाँ गया संजय राठौड़ बलात्कारी? आज देवेंद्र फडणवीस के बाजू में खड़ा रहता है बलात्कारी। तुम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, और उसके बाद में आप बेटियों पे बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं। कल पूना में एक लड़की का 3 लड़कों ने मर्डर किया। वी आर सेफ? हमारी बेटी सेफ है? हम सेफ है? नहीं। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में पुणे में विकास नहीं, पुनः भकास हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कुछ भी नहीं हुआ है। और युवा रोजगार, जो तुम 2000 युवा रोजगार देने वाले थे, किधर गया 2 करोड़ रोजगार? हमारे यूथ, आईटी के यूथ सब अभी नीचे भी कितना यूथ है, उनको पूछो क्या काम धंधा करते हैं? काम धंधा ही नहीं है, रोजगार खत्म। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अगर अपनी गारंटी की बात भी करती है, लोग आपकी गारंटीज पे विश्वास नहीं करते? आपने 2019 में, आपको याद होगा, न्याय योजना की बात की थी। 72,000 रुपए अकाउंट में जाएगा लोगों के, ये बताया था आपने। लेकिन लोग वो नहीं माने, वो 6,000 रुपए में मान गए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी पूरी होगी। कांग्रेस की गारंटी में विश्वास क्यों नियम नहीं है, हर आदमी बदल जाता है, हाँ। हर वक्त बदल जाता है। कभी किसी का अप, किसी का डाउन होता है। उन्होंने भरोसा करके देखा, हाँ। 10 साल में उनके हाथ में कुछ नहीं आया। अभी 2024 में दिखा देगी ना जनता। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और तुम हाँ। लोग काहे के लिए है? हाँ। तुम लोग दिखा ही रहे ना दुनिया को, कितना डेवलपमेंट है, कितना रोजगार मिला, कितनी हमारी महिला। मणिपुर में क्या हुआ? क्यों मणिपुर की बेटी हमारी बेटी नहीं थी? हाँ। 2 लड़कियां नंगी घुमाई गई, सामूहिक बलात्कार हुआ, क्यों नहीं आंसू रोए? हमारी जो कुश्ती पट्टू थी, उनके ऊपर अत्याचार किया एक पहलवान ने, क्यों नहीं तुम्हारे आंख में आंसू आए? अच्छा, आप ये सारी बातें बोलती हैं, अब क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत आपकी कांग्रेस की ही हेड है। एक सेकंड, हाँ। इन्होंने महिलाओं पे बात की। आप ये बताइए, सुप्रिया श्रीनेत के एक अकाउंट से एक बहुत भद्दा, डिस्टेस्टफुल पोस्ट जाता है कंगना रनौत के लिए। मानती हूँ ना। क्या उन्होंने आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया है? मानती हूँ, उन्होंने वो बहुत बड़ी गलती की। हाँ। उसका हम लोग ये नहीं, जो गलत है वो गलत है। पर यही तो फिर कंगना क्या- रनौत बोलती है, हाँ। 2014 के बाद आजादी मिली, तो फिर नेहरू जी, गांधी जी, इन्होंने क्या किया था? आप उसको माफी है। और नहीं, सुप्रिया नहीं, श्रीनेत आप- ने सुप्रिया श्रीनेत ने गलत बात की, इसके लिए आप हमसे न्याय मांग रहे हैं। हाँ। फिर जो इसने बोला गया है कि 2014 के बाद आजादी मिली, इसके पहले प्रोग्रेस नहीं था, हाँ। हॉस्पिटल्स नहीं बंद है, डैम्स नहीं बंद है। चलिए जनता ये डिसाइड कर लेगी। 50 साल में इन्होंने हाँ। अगर विकास किया होता हाँ। तो लोगों ने इनको घर में नहीं बिठाया होता अभी। ठीक है मुरलीधर जी, लेकिन सीरियस बातें करते हैं। देखिए, मराठा रिजर्वेशन, लैंड ऑफ मराठास में है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट वोटर यहाँ पर मराठा वोट है। अब आपने मराठास को लेके एजिटेशन देखा, और वो भी तब जब आपका एक मराठा मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे में। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, भाजपा की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार आपके साथ आए तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। तो ये मराठा रिजर्वेशन आपके खिलाफ बैकफायर करेगा, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जब देवेंद्र जी 2014 से 19 तक सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब पहली बार
इससे पहले मराठा तो मुख्यमंत्री बहुत बने महाराष्ट्र में। हाँ, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रिजर्वेशन दिया मराठाओं को तो देवेंद्र फडणवीस के सरकार में दिया गया और वो हाईकोर्ट में भी कायम रहा। लेकिन जब ये सरकार बदली, जब ये महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आई तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन उनको कायम नहीं रख पाई, उनका फेल्यूर है। उसके बाद भी आज 2.5 साल का उनका गवर्नमेंट चला गया, उस 2.5 साल में भी कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर एकनाथ शिंदे साहब का, अजीत दादा और देवेंद्र जी का गवर्नमेंट जब आया तो फिर से अभी एकनाथ शिंदे साहब के गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकली कुछ अभी डिमांड्स प्रॉब्लम्स है, कुछ डिमांड्स है। तो मुझे लगता है कि ये एक ही गवर्नमेंट ऐसी है महायुति की जो मराठा को रिजर्वेशन दे सकती है और वो कायम रख सकती है, ये एक ही गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आप मराठा रिजर्वेशन के पक्ष में, लेकिन बसंत जी कुल मिलाकर वही सवाल मैं आपसे आखिर में पूछूंगी जिससे हमने शुरुआत की थी। कहा यह जा रहा था कि आपकी जो पार्टी है वो इंडिया अलायंस के साथ रहेगी और आप लोग ने भी बहुत बड़ी बातें कही थी कि इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं, देश में तानाशाही। आप खुद कहते हैं कि जिस तरह का विकास की भाजपा बात करती है वो नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अल्टीमेटली आपने इंडिया अलायंस से बाहर निकल गए हैं? आप यहाँ पर स्पेशली पुणे में आप क्यों इसको एक ट्रायंगुलर फाइट बना दिया? आपने एक त्रिकोणीय फाइट बना दी है जिससे फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, अभी आपने जो बात की है पार्टी के बारे में, हाँ। मैं तो फिलहाल अभी 8 दिन हो गए पार्टी ज्वाइन करके। जो पार्टी एजेंडा जो है वो प्रकाश अम्बेडकर जी ठहराते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि क्या हुआ, क्यों नहीं गए, क्यों अलायंस नहीं हो गए। उनसे अगर वो बात आप करेंगे तो वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं जब MNS छोड़ दिया 12 तारीख को, तब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूना सिटी के अंदर कौन सी ही परिस्थिति में इलेक्शन करूंगा। तब से लेके आज तक मैं वही मेरे शब्द पे कायम हूँ कि मैं इलेक्शन करूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे ये पूना की सीट दी। तब से मैं लेके आज तक मैं पूरे पूना के अंदर खाली विकास के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। कहा यह जाता है कि आपकी पार्टी भले जीत ना पाए इलेक्शन, लेकिन दूसरे को वो हरा सकती है। जैसे वो अभी देखेंगे ना, ओवैसी जी को लेकर बात अरे होती है। 2018 साल की पार्टी है। अगर 6 साल के अंदर ये पार्टी का दूसरा इलेक्शन है, अगर दूसरे इलेक्शन में अगर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये पार्टी किसी को हरा सकती है, खुद भी जीत सकती है, इतना भी ध्यान में रखना चाहिए। आएगा, शायद आप जीत सकेंगे, वो समय भी आएगा। लास्ट वर्ड आपको देती हूँ मैम, मुझे बताइए कि यहीं से सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन हुआ। मराठा रिजर्वेशन बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। हमने ये भी देखा एनसीपी में स्प्लिट हुआ, सेना में स्प्लिट हुआ। कांग्रेस कितना कॉन्फिडेंट है? आप लोग अपने लिए क्या नंबर्स देते हैं महाराष्ट्र से? देखिए, कांग्रेस के तरफ से उनको अगर बोलना है तो उनको बोलिए। ठीक है, वो मेरे को बोलने नहीं देना। चलिए साजिश आप बोलिए। पहली बात तो एक, वंचित ने हमेशा महाविकास आघाड़ी के वोट खाए, उसके लिए खड़े रहते वो। दूसरा कोई कारण ही नहीं है। बताइए ना मुझे, दो उम्मीदवार मजबूत है। मैं बोलती हूँ भाजपा। लेकिन मैंने सुना है कि सुप्रिया सुले को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने रोल किया है वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी के वोट खाने के लिए। उनको पूछिए, साथ दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग है और वो उनके वोट लेना चाहता है। और इससे अगर वो सोचते हैं कि रवि धंगेकर जीत के नहीं आए तो बहुत बड़ी गलत है। ये पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा 80,000 तक और हमारा ही उम्मीदवार रवि धंगेकर ही जीत के आएगा। ये हम ठीक है। धंगेकर, मैं एक बात बता दूं, धंगेकर ही बताएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है रवि, मास लीडर धंगेकर इज द मास लीडर, रिमेम्बर। ठीक है मैम। संगीता जी देखिए, रवि जी मैं बता दूं, सुनिए क्या है कि रवि जी अभी रास्ते में है। हमें बताया गया है कि उनको थोड़ा सा लेट हो गया है, दैट इज व्हाई वी गॉट दिस कॉन्वर्सेशन। बट आप सोच सकते हैं कि 2 कैंडिडेट्स वर्सेस कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हैज क्रिएटेड सो मच फायर हियर ऑलरेडी एंड क्लियरली दिस इज अ हॉटली कंटेस्टेड सीट इन पुणे। वी आर वॉचिंग आउट व्हाट हैपेंस हियर ऑन द 4th of June. The state of Maharashtra very fascinating this time around. Our election yatra continues. I thank all our guests for joining us.